So we started the section of lenses. I will do a quick recap. हमारे पास दो तरह के lenses हैं. एक converging lenses हैं और एक diverging lenses हैं. Convergent lenses rays को एक point पे converge करते हैं ताकि वो rays intersect करें. और diverging lenses उन rays को spread out करते हैं या diverge कर देते हैं. Okay? So lens diagrams are very important. इनमें कुछ features हैं. सबसे पहला फीचर आपका प्रिंसिपल एक्सिस. ये आप लेंस के सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. और नेक्स्ट फीचर इज प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे फोकल पॉइंट. जब ये पैरेलल रे कन्वर्ज होती है इस लेंस से और वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. और लेंस के सेंटर और प्रिंसिपल फोकस से जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं. ओके. अच्छा, अब हमारे पास ये डायग्राम्स हैं कुछ. कन्वर्जन लेंसेज से पैरेलल रेस कन्वर्ज होती है और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. और डाइवर्जिंग लेंसेज से रेस डाइवर्ज होती है और उनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बिहाइंड द लेंस. और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है वो उसका प्रिंसिपल फोकस होता है. Is there any confusion from yesterday's class? No, ma'am. Okay, let's move on to today's topic. Today we're going to basically cover images, real and virtual. और जो हमने yes. वो जो कॉनकेव लेंस है उसका मैंने पूछना था. Yes, go ahead. मैम आपने कहा था कि जिस तरह मिरर की एग्जांपल है या वैसे भी इसके पीछे इमेज बनती है लेकिन इसके तो आगे बन रही है. That was about diverging lens. Oh, here. It's behind the mirror. मैम ये फ्रंट नहीं होगा? No, this is behind the mirror. Rays are diverging here and then they capture a person's eye here. Okay? Yes, ma'am. Okay. All right. So today, let's talk about images. Wait a second. Okay. I think I'll only cover. Okay. Sorry, I was looking at how much content to cover. So, images. Okay. Images. हमारे पास दो तरह की images होती हैं. Real or virtual. Okay. पहले हम इनकी properties देखेंगे. उसके बाद we will look at different images formed by the two types of lenses that we have just discussed. Real image क्या होती है? इसकी example है वो image जो screen पर होती है. For example, when you take a picture, that is a real image. Another way to put this into words is that it's an image that's captured. So I'll write it down here. So a real image is an image formed on screen. मैम मतलब जो हमने तस्वीर फोटोग्राफी की हुई है वो वाली? Yes, you can say that the picture, the photograph that you've taken, that is a real image.
और virtual image reflection को कहते हैं. Okay? For example, your reflection in a mirror. जो image move करती है, जब आप move करते हैं तो image भी move करती है, right? That's a virtual image. मैम वो तो Reflection वीडियो भी हो सकती है. in 1 minute. You're right, but it's still captured, right? It's in a device and you can play it back and forth to see the frames. Video kya hoti hai? Video is like a lot of pictures captured and they're combined to like, have an entire video, right? So still, those are images that have been captured, and anything that's captured is a real image, and a reflection is a virtual image. Is that clear now? Yes, ma'am. Okay. Let's write a formal definition. Not a definition, sorry. We're going to see how these images are formed. Real image तब बनती है जब rays from an object converge and meet each other. Okay? And they can be projected on a screen or paper. So basically, converging lenses से real images बनती है. और इसको एक और समझने का तरीका ये है कि जब दो solid lines जो हैं when they cross in a ray diagram like this. जब एक diagram में दो solid lines cross करती हैं या intersect करती हैं तब real image बनती है. Okay? और जब दो dotted lines intersect करती हैं यहाँ पे तो तब virtual image बनती है. Okay? Either two dashed lines या dotted lines या फिर एक solid और एक dotted. अगर दोनों में से एक भी dotted हुई या दोनों dotted हुई तो उसको हम जो image बनेगी उसको virtual image कहते हैं. Okay? And we will see in more lens diagrams or ray diagrams, how and when do you have one dashed and one solid. Okay? For now, let me write down these points. So, a real image is formed when the light rays from an object converge and meet each other. Converge करने का मतलब ही उनका ऐसे like bend होना है कि वो आखिरकार intersect करनी. So converge and meet each other. And these can be projected on a screen or paper. Can be projected on a screen or paper. Okay? और यहाँ पे कौन सा phenomena है? Convergence. This is important. And another important property here is that these images are inverted. I'll come back to this point as well when we look at the lens diagrams. Let me highlight it for now. And another identification here is that when two solid lines cross in ray diagrams, when two solid lines cross in ray diagrams.
Let me write some points for मैम yes. एक सॉलिड और एक डॉटेड लाइन में क्या फर्क होगा एक रे में? सॉलिड लाइन होती है जो कि रे खुद ट्रैवल करी, और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है जो हमने खुद उसको एक्सटेंड बैक किया। ओके, डॉटेड इमेजिनरी होती है सॉर्ट ऑफ, यस। जी। ओके, मैम तो इमेज दोनों फॉर्म कर रही है। दैट्स राइट, इमेज दोनों फॉर्म करते हैं। Bring this here. Sure. Virtual image is an image that's formed when the light rays from an object do not meet but appear to meet behind the lens and cannot be projected on the screen. Let me write this down and then I'll explain it. Formed when light rays from an object do not meet but appear to meet behind the lens and okay, I think it's 1 point. The next point will be that they can be projected on screen. Okay. And here we have convergence, and for real image, virtual images, we have divergence. Okay. Here you had an inverted image, and here you have an upright image, and I'll come back to this, don't worry. Let me highlight this as well. Please remind me to come back to this if I don't do it by the end of the class. So here, yes, let me sweep this a little bit. When two dashed lines cross or one dashed and one solid line cross in ray diagrams. Okay. All right. And a very good example would be this one. Two dashed lines intersecting on a ray diagram. This is your, let me actually, I think it will be helpful if I copy these here as well for reference. So these are general diagrams. Okay. We still have a lot of detail to cover.
मैम Alright. एक वो जो दूसरा कॉन्सेप्ट उसका रिकैप कर दें, डाइवर्जन वाला। कौन सा वाला? ये वर्चुअल इमेज वाला एक दफा इसका रिकैप कर दें। Okay, sure. I will do it for both of them actually, side by side. Real image जो है वो तब फॉर्म होती है जब रेस कन्वर्ज होती है, ओके, और वर्चुअल इमेज का फॉर्म होती है जब लाइट रेस जो है दे डू नॉट मीट, मतलब वो यहाँ पे मीट नहीं करती बट दे अपीयर टू मीट। अपीयर का क्या मतलब है कि ये इमेजिनरी है, दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द लेंस। This can be projected on a screen. This, oh, I wrote can for both of them. So this cannot be projected on a screen. This one can't be projected on a screen. So this is formed by convergence, or virtual images हैं, they're formed by divergence. ये images inverted होती हैं और ये upright होती हैं. I'll come back to these points. Real images कब बनती हैं जब दो solid lines intersect करती हैं, like two solid lines. और virtual images कब बनती हैं जब two dotted lines या फिर one dotted or one solid line intersect करेगी. We will look at this example of dashed and solid line just in a few minutes. Is that clear? मैम ये जो Yes. प्रोजेक्टेड वाला पॉइंट है, मतलब जो हमारे पास रियल इमेज होती हैं, इन्हें प्रोजेक्टेड का ये सेंस है कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इन्हें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। Yes, that's right. But इसको और उनको नहीं आप कर ऐसे भी, सकते। yes, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको हम कैप्चर कर सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस को कैप्चर नहीं किया जा सकता। आप Yes, मिरर में ma'am. खड़े हैं और अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो जैसे अब आप मूव करेंगे तो आपकी इमेज भी मूव करेगी, okay? And if it doesn't move, then that will be a horror movie. अच्छा, अब हमें क्या करना है? We're going to draw some lens diagrams, okay? सबसे पहले हम converging lens की diagrams देखेंगे। Converging lenses से हम real image भी बना सकते हैं और virtual image भी बना सकते हैं। और diverging lenses से सिर्फ virtual images भी। Let me go through that. Okay, firstly I'll write this down जो मैंने point बोला। फिर so we have two types of lenses. I'll just copy this here. Okay. Converging lenses से आप real और virtual दोनों images बना सकते हैं, और diverging lenses से सिर्फ virtual images बनती हैं। Okay, अब हम क्या करेंगे? हम one by one ये तीनों scenarios check करेंगे। So we're gonna do this scenario first. Converging lenses से real image कैसे बनती है? I will color code this as green. Here. Converging real. अच्छा, हमारे पास 1, 2, 3 ray diagrams हैं इसके लिए। मैं तीनों को इकट्ठा ड्रॉ करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले अपना स्केलेटन ड्रॉ करना है इस डायग्राम का, लाइक उसका जो, यस, आपके बैकग्राउंड से ना बहुत आवाजें आ रही हैं। Okay, wait. Give me 1 minute. I want a good spot to sit. Actually, I have my exams coming up, my finals. So I stay on campus late so that I can study all day. When I go home, I sometimes get lazy and don't study. That's why there's background noises, but I found
a study capsule. अगर मैम कोई नहीं होता तो फिर सही है यूं ही. No, it's okay. I found it. You're lucky today. Alhamdulillah. You guys have to pray for me though, so that my exams go well. Inshallah. I only have 1 month, so okay. मैम यूनिवर्सिटीज में भी एग्जाम का स्ट्रेस होता है. Of course, it's worse than O levels. O levels so mazak tha. Anyways, okay. Is it okay now? Yes मैम. Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे converging lenses. इनमें 3 scenarios देखेंगे, हम 3 ray diagrams देखेंगे. Okay, let me draw. Yeah, I was saying I'll draw the skeleton of these diagrams first. सबसे पहले जब आपकी ray diagram draw करनी है, अगर आपको like if they ask you to draw it from scratch, which is unlikely but not impossible. पहले principal axis draw करना है, फिर अपना Ma'am? lens draw करना है. Yes? ये फ्रॉम स्क्रैच का क्या मतलब होता है? मतलब कि बिल्कुल शुरू से लाइक आपको कुछ भी गिवन नहीं हो और आपको फाउंडेशन से सब कुछ खुद करना पड़ेगा. यस मैम. ओके, सबसे पहले आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, फिर आपने अपना लेंस ड्रॉ करना है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग जो भी. हमारे पास कन्वर्जिंग है तो विल ड्रॉ दिस लेंस. फिर आपने एक लाइन उसके सेंटर में ड्रॉ कर देनी है, शो करने के लिए कि ये लेंस का सेंटर है और यहाँ पे बेंडिंग शुरू हो. फिर आपने क्या करना है, आपने एक रे जो है okay, wait a second. अच्छा, sorry, let me start over. पहले प्रिंसिपल एक्सिस, फिर लेंस, फिर उसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की शो करने के लिए कि ये लेंस का सेंटर. फिर आपने क्या करना है, आपने अपना फर्स्ट और सेकंड फोकल पॉइंट ड्रॉ कर लेना. आपको थर्ड की जरूरत ही पड़ती क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसमें रेलेवेंट फर्स्ट और सेकंड फोकल पॉइंट ही है दोनों साइड्स पे. यहाँ पे भी आपने इसको एफ मार्क कर दिया और यहाँ पे भी. You have to eyeball this and make sure that you draw equal distance from the lens. बिल्कुल accurate होना जरूरी नहीं है. They're not going to measure it with a ruler. You can try your best to make it as accurate as possible. Then you can draw a 2F and a 2F here. फिर आपने रेज ड्रॉ करनी शुरू करनी है. अब वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है. ओके, मैं इसको 2 दफा डुप्लीकेट करूंगी क्योंकि हमने 3 केसेस पढ़े हैं. स्केलेटन सेम रहेगा. अब 3 केसेस है हमारे पास. पहला केस है कि आपका ऑब्जेक्ट एफ और 2F के दरमियान में. दरमियान में का मतलब ये नहीं कि मिड पॉइंट पे, मतलब कहीं पे भी एफ या 2F के दरमियान पे कहीं पे भी. सो लेट्स से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे here or maybe here. ये आपका ऑब्जेक्ट है. I'll mark this O और यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर देते हैं ऑब्जेक्ट की लेंथ को इलस्ट्रेट करने के लिए. ओ लिखना वैसे जरूरी. ओके, I'll just keep it that way. दूसरा ऑब्जेक्ट आपका है 2F से बाहर, लेट्स से यहाँ पे. I'll just copy this. दूसरा ऑब्जेक्ट आपका सेकंड फोकल पॉइंट से बाहर है और तीसरा ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली 2F पे, लाइक दिस. ओके, पहले स्केलेटन ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस, लेंस का सेंटर और फोकल पॉइंट्स मार्क कर लिया.
फिर रे डायग्राम बनाने के लिए जरूरी है आपको पता हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। या तो आपका ऑब्जेक्ट एफ और 2f के दरमियान में होगा या 2f से बाहर होगा या फिर एग्जैक्टली 2f पे होगा। नाउ द मेथड फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स इज द सेम। आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी, उसकी प्रॉपर्टीज याद करना। आई हेटेड डूइंग दैट। आई विश समवन हैज टोल्ड मी टू फिगर इट आउट जस्ट बाय द डायग्राम। सो आई टेल यू गाइस दैट पहला स्टेप है कि आपने इस ऑब्जेक्ट से लाइन एक्सटेंड करनी है और लेंस के सेंटर से पास करती हुई आगे तक ले जाना, लाइक दैट। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ एरोस टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रे, लाइक दैट। दूसरा पॉइंट है कि आपने दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बिल्कुल सीधी ले जानी है, इस तरह, इससे पैरेलल, और लेंस के सेंटर से उसको बेंड करना है, रिफ्रैक्ट करवाना है और फोकल पॉइंट से पास करवाना है फर्स्ट, लाइक दैट। और जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी आई। और इमेज, let me extend this, if you see is like this, इसका एरो ऐसे बनेगा, like that। और इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली बात ये रियल इमेज है क्योंकि दो सॉलिड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी बात कि अगर आप ऑब्जेक्ट के एरो की लेंथ देखें और इमेज के एरो की लेंथ देखें तो आपको पता चलेगा कौन सी ज्यादा बड़ी है। मैम इमेज वाली। Image is like larger, so the image is enlarged, it's magnified, so the second property is मैम enlarged। मैग्नीफाइड इस वजह से क्योंकि वो करीब है आए के। uh I'm not considering that point for now because that is actually, it's not closer to the eye. It has to do with the lens and the position of the object. Magnification class में ये phenomena use होता है, so it doesn't have anything to do with eye and stuff. सॉरी We मैम are, मैंने गलती से आए कह दिया था, लेंस कहना था। yes, you could say that. All right, not exactly, I would say, because actually you're right, that is the reason. It's closer to the lens, so it's enlarged. And the third important point is कि अब देखिए ये arrow upright है और दूसरा उल्टा हुआ है, invert हुआ है, so your image is inverted. That's the third property. Inverted, okay? अगले भी में भी आपने बिल्कुल वही स्टेप्स करने हैं। पहले एक लाइन बिल्कुल सेंटर से पास करवा दी, लाइक दैट, इस पॉइंट से पास करवानी है। दूसरी लाइन एक्सटेंड की आपने, उसके एरोस लगाना नहीं भूलना, लाइक दैट। दूसरी लाइन आपने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास करवाई और फिर फोकल पॉइंट से पास करवानी है, लाइक दैट। और यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, here, and then arrows. Let me draw the image arrow like this. This is so hard. Okay. अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि इमेज का जो एरो है वो ऑब्जेक्ट के एरो से बड़ा है, छोटा है, या सेम साइज का? मैम स्मॉल है। It's smaller. So your image is diminished or smaller. फर्स्ट पॉइंट सेम है, ये रियल इमेज है। और ये क्यों रियल है? क्योंकि दो सॉलिड लाइंस मीट कर रही हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये इमेज डिमिनिश्ड है। मैम डिमिनिश तीसरा, मतलब स्मॉल हुई हुई है। यस, छोटी हुई है, दैट्स राइट। और तीसरा पॉइंट वही है कि ये इमेज इन्वर्टेड है। मैम इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है। यस। तो मैम हमें वो सीधी किस तरह दिखेगी? हमें सीधी नहीं दिखती। हमें नहीं सीधी दिखती।
No, in these lenses, no. अच्छा मैम मैग्नीफाइंग ग्लास तो हमें सीधी इमेज दिखाता है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की एंगल से देखेंगे तो वो उल्टी होती है। सो फॉर एग्जाम्पल जब अपने कैमरा में पिक्चर खींचते हैं तो आपको वो पिक्चर उल्टी होती है। उल्टी अच्छा का मतलब ये नहीं कि पिक्चर बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी, वो फ्लिप्ड होती है, राइट साइड लेफ्ट पे, लेफ्ट राइट। अच्छा तो मैम हमें वो कैमरा फिर फ्लिप करके दिखाता है। No, some cameras do, probably some don't. I think it depends on your camera, like front camera use कर रहे हैं कि back camera. ओके Okay. Third steps भी वही है. Now you guys are gonna tell me कि मैं वो दोनों rays कैसे draw करूँगी one by one. Firstly, any one of you can volunteer and tell me how do I draw the first line. मैम Yes? ये हम लोग इस पॉइंट से एरो क्यों बना रहे हैं? हम लोग पॉइंट के ऊपर से भी 2F से भी तो लेके जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को। No, object place वहाँ पे हो. ये object की placement है. Object इतने distance पे है lens. और मैम अगर लाइन के ऊपर होगा फिर कैसे करेंगे? कौन सी line? मिनट आप जूम आउट हो गई है ये वाले जिस पर अगर पॉइंट 2F के ऊपर होता हमारा ऑब्जेक्ट पूरे 2F पे। That's what we're gonna do now. नहीं मैम ये जो एरो लगा है ये ना होता। यहाँ पे होता ऑब्जेक्ट, ऐसा पॉसिबल जी ही नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको शो करे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ ही ना हो। ऑब्जेक्ट का कोई तो साइज होगा ना। ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लाइक इट्स अ फिजिकल थिंग, समथिंग दैट यू कैन मेजर। फॉर एग्जांपल आप हैं एक ऑब्जेक्ट, आपकी हाइट है, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ ह्यूमन हु डज नॉट हैव एनी हाइट, दैट विल नॉट एग्जिस्ट। उसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई डिमेंशन ही ना हो, that object won't exist then. Or another case would be that that object is supernatural or a ghost, and we're not applying our physics on ghosts. Is that what you were asking? यस मैम। Okay. So 2F here. Acha, now you guys can tell me कि दो rays कैसे draw करनी है. Okay, Husnan, you go ahead first and tell me कि first ray कैसे draw करनी है. मैम फर्स्ट रे उसके एक्सिस से हमने क्रॉस करनी है या ड्रॉ करनी Center से. है। हाँ जी Center जी नहीं है, सॉरी। बिल्कुल straight line. Now Zen, you go ahead and tell me how do I draw the second one. मैम एरो की टॉप से पहले That's right. And then और फिर उसे बेंड कर कहाँ से cross? Yes, first focal point से intersect करवाना है. And this is where your image will form. Here is your image, and this is the length of your image. मैम Now, इस केस yes. Sorry, इस केस में लेंथ ऑफ इमेज बाहर है। I can't hear you. I'm sorry. मैम Yes, ये जैन कह रहे हैं कि इस केस में लेंथ ऑफ इमेज सेम आ रही है। that's right. That's the property that we're going to write here. Firstly, it's a real image. Secondly, it's diminished. Oh, sorry, not diminished. Wait, sorry. Enlarged, diminished, and what's the third word? Let's just say same size as the object. I forgot if there's any other specific term for that. I'll just write same size as object. And the third one is that it's inverted. Okay, so these are properties of the image. मैम Yes, ये आप एक दफा रिपीट कर देंगी कि इनलार्ज्ड वगैरह क्या होता है? yeah, I'll do that. Properties of images formed
Okay, let me recap this. हमारे पास दो तरह के लेंसेज हैं, एक है कन्वर्जिंग, दूसरा है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग से हम रियल और वर्चुअल दोनों बना सकते हैं इमेजेस, और डाइवर्जिंग से सिर्फ वर्चुअल बनती है। पहले हम कन्वर्जिंग रियल केसेस देख रहे हैं, 3 केसेस हैं हमारे पास। ओके, पहला केस है कि आपका जो ऑब्जेक्ट, अच्छा पहले स्केलेटन रिकैप कर देती हूँ। स्केलेटन कैसे ड्रॉ करना है, एक पैरेलल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, प्रिंसिपल एक्सिस, अपना लेंस ड्रॉ किया, उसका सेंटर ड्रॉ किया, फिर ऑब्जेक्ट की फिर फोकल पॉइंट्स ड्रॉ किए F1 एंड F2, सॉरी F1 to F। फिर आपने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया, या आप ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान में रखेंगे, या 2F से बाहर, या फिर एग्जैक्टली 2F। अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान में, तो आपकी ऑब्जेक्ट इमेज तो तीनों में रियल है, क्योंकि हम डिस्कस ही रियल इमेजेस को कर रहे हैं। इस केस में इमेज एनलार्ज्ड है, क्योंकि इमेज का एरो ऑब्जेक्ट के एरो से बड़ा है। सो दिस इज एनलार्ज्ड, मतलब वो जूम्ड इन है इमेज। ओके, और एरो क्योंकि अपसाइड डाउन है, तो ये इन्वर्टेड इमेज है। मैम इनलार्ज्ड का मतलब है कि वो डिस्टेंस ज्यादा है इमेज और उसके दरमियान। नो, एनलार्ज का मतलब है कि वो जूम इन किया पिक्चर। जैसे कि मैम Zen mentioned an example of magnifying glass. That's what enlarged means. Yes? यस मैम, जी सही। Okay. दूसरे केस में आपकी इमेज डिमिनिश्ड है, क्योंकि इमेज का एरो ऑब्जेक्ट के एरो से छोटा है और वो इन्वर्टेड है। और तीसरे केस में भी इमेज सेम है, नहीं सॉरी, या तीसरे केस में इमेज सेम है ऑब्जेक्ट की लेंथ से, and it's definitely inverted and real. Any confusion so far? मैम ये इन्वर्टेड में क्या होता है? इमेज जो है वो फ्लिप हुई होती है। और मैम ये कब नहीं होगी? अभी हम जो केस देखेंगे उसमें नहीं होगी। जी। Okay. Alright. अगला केस हम देखेंगे कन्वर्जन लेंसेज से वर्चुअल इमेजेस कैसे बनते हैं। I'm gonna color code it as red, or let's do orange. Virtual, oops, ran out of space. Let me drag this and okay. Now we're going to do converging lenses से virtual images कैसे बनती हैं। Converging virtual, same setup है, okay? Converging lens है, same setup. I'll repeat this setup. पहले एक straight line draw कर ली, principal axis. Converging lens है, तो converging lens draw कर लिया। Works. लेंस का सेंटर ड्रॉ कर लिया, फिर अपने फोकल पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। दिस इज F to F, F to F। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। जब आपका ऑब्जेक्ट F से भी पहले होगा, लेट्स से हियर, तब आपकी आइकॉन कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट, सेम स्टेप्स हैं। पहले एक लाइन लेंस के सेंटर से एक्सटेंड कर ले, लाइक दैट। दूसरी लाइन इससे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, ऑब्जेक्ट से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस के सेंटर तक, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको F से पास करते हैं, लाइक दैट। अच्छा, जब दो रेस
इंटरसेक्ट नहीं करती तो आप उनको एक्सटेंड करते हैं back. मैं इसको भी एक्सटेंड करूंगी like that, and I'll extend this as well like that. Looks good to me. So this is your image. Where's the arrow? We can do like this. Now, let's write down the मैम ये properties. तो इमेज ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही आ रही है। That's right. It's a virtual image. ये मैटर मैम नहीं तो ये तो करता. बिल्कुल इमेजिनरी है। No, it's not imaginary. It's behind the lens. ये लेंस का फ्रंट है और ये लेंस का like it's behind the lens. Okay? मैम तो कोई ऑब्जेक्ट लेंस के बिहाइंड कैसे हो सकता है? You see yourself behind the mirror. आपकी जो image बनती है, it's behind the mirror. Yes, ma'am. Okay. It looks a little weird, but when you familiarize yourself with these concepts, it will make much more sense. I know you might have heard me say that 1,000 times by now. अच्छा, properties of this. First of all, दो dotted lines intersect कर रही हैं तो ये image क्या है? Virtual. Virtual. That's right, excellent. Secondly, image diminished है, enlarged है, same size है? Enlarged. Excellent. And thirdly, it's upright. ये वाली image invert नहीं हुई. Okay. So those were the ray diagrams for converging lenses. हमने converging lenses से ये भी देख लिया कि real images कैसे बनती हैं और virtual images कैसे बनती हैं. Ma'am? Yes. Yes. No, ma'am, कुछ नहीं, बस समझा। Okay. Okay. अब हम देखेंगे diverging lenses की ray diagrams. I think there's only one that we're concerned with. मैम हमने उसका एक ही सिनेरियो पढ़ना है। Diverging lenses का? नहीं, उसका दूसरे का वर्चुअल जो था। दो scenarios हैं. एक virtual image बनती है converging lenses से और अब हम जो diverging lenses में देखने लगे हैं वो भी virtual है. जी। So let me color code this as light green. Okay. Same steps हैं, nothing fancy. Principal axis, lens draw करना है और यहाँ पे हमारा lens है diverging. मैम डाइवर्जिंग वाले केस में हम हमेशा लेंस नहीं ड्रॉ करते। हमने भी लेंस ड्रॉ किया तो है हर केस में। अच्छा, तो मैम आप वहां पे क्यों कर रही हैं डाइवर्जिंग वाले केस में? ये भी लेंस है। Sorry, I didn't understand your question. What was your question? मैम हम डाइवर्जिंग वाले केस में ये वाला लेंस हमेशा ड्रॉ करेंगे। Yes, this is a symbol for diverging lens. ओके, सही है। Diverging lens ऐसे ड्रॉ करते हैं, converging lens ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये हमने बिल्कुल शुरू में देखा था। Here. Same steps हैं। इसका फिर center ड्रॉ कर लें, एक line straight like that. Focal points ड्रॉ कर लें, F to F, F to F. Object placement. Object और फिर वही steps. Center से पास करें, equal.
ओके, एक लाइन सेंटर से ड्रॉ करें और दूसरी लाइन स्ट्रेट. Just a second, sorry. I'm so sorry, I received an important call. Okay, एक लाइन सेंटर से ड्रॉ करें. I'm so sorry. Yeah. So one line from the center. I'm so sorry for that. और दूसरी line parallel to the axis और फिर F से pass कर देंगे. Oh, sorry. No, I think I messed up a little bit. Oh, yes. So this is a diverging lens. यहाँ पे converge नहीं होंगे, diverge होंगे. So what you're just going to do is extend this like that. And how you're going to draw this line is basically कि आपने ensure करना है कि वो line F से pass करे जब हम इसको extend करेंगे. So basically, you're going to extend the line like this. आपने इसको ऐसे diverge किया. और जब आप इसको extend करेंगे, wait, I think I'm confusing you guys. Let me start over. Principal axis draw किया, ना lens draw कर लिया, lens के दरमियान एक line draw कर ली, center के लिए, focal points draw कर लिया, object placement कर ली. पहली line passes towards the center, दूसरी line parallel to the axis, और अब diverge करना है रे को. I think I forgot the arrows at different points, so please don't forget, you guys. अब जब आपने इसको complete करना है रे diagram को, so you have to extend this back focal point पे लेकर आना. जिस point पे वो दोनों intersect करते हैं, this one, this is your image. I. Like that. और इसके features लिख लेते हैं. पहला फीचर इसका क्या है कि ये वर्चुअल है, क्योंकि एक सॉलिड, अब आपने देखा कि सॉलिड और डॉटेड लाइन कैसे इंटरसेक्ट करती हैं. दिस इज द एग्जांपल आई वाज मेंशनिंग कि एक सॉलिड और डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी. और ये इमेज देखिए आप ऑब्जेक्ट से छोटी है, इट्स डिमिनिश्ड. And thirdly, it's upright. Okay, that's it for this one. I don't think there's anything else left. मैम अपराइजिंग का क्या मतलब है? Upright मतलब कि वो flip नहीं है, it's straight, just like the object. मैम ये virtual image है ना? Yes, it's virtual. जब भी आपके पास एक solid और एक dotted, या फिर दोनों dotted lines intersect करती हैं, that's a virtual image. Let me recap the lenses, this part for images. Now when you guys read this will make so much sense to you guys. Real image क्या होती है? It's formed when the light rays from an object converge and meet each other, and they can be projected on a screen. They are due to convergence. आप देखिए कि real images सिर्फ converging lenses बन रही हैं. real, और ये converging lenses हैं. और diverging, एक converging lens और diverging lens से क्या बनती है? Virtual. मैम Yes. ये जो रियल वाली डायग्राम के अंदर बनी हुई है, ये वाली जो हमारी इमेज है जहाँ पे कन्वर्ज लिखा है इसके नीचे, ये किस चीज की है मैम? हाँ जी. It's a converging lens. नहीं मैम, तो ये एक रियल इमेज है. This is just the representing कि
कन्वर्जेंस क्या होती है? आप देखिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे ड्रॉ किया, जस्ट टू पैरेलल लाइंस। ये सिर्फ रेस पता नहीं कहाँ से आ रही है। इट्स जस्ट अ मैम तो ये कॉन्सेप्ट। क्या है? इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट्स नथिंग। ये डायग्राम ना रियल की है ना वर्चुअल की है। Well, that's a difficult topic to discuss. I'm not sure. और मैम ये From इसके जो राइट पे है। this one, basically जब आप दो पैरेलल रेज ड्रॉ करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत डिस्टेंट है। Let's say you're looking at the sun. So the image formed could be here. I would believe so, but I might be wrong. We're gonna have to look up for that. But from what I know, this parallel, जब आपको ऐसे दो rays आ रही हैं, इसका मतलब it's coming from a distant object. And in this case as well, it's coming from a distant object. In these two scenarios, I just represented convergence and divergence. I haven't formed an image क्योंकि image के लिए आपको एक object चाहिए और यहाँ पे हमने कोई object placement नहीं की. Is that clear? So this यस is मैम। not an image. That's my opinion. मैम Yes. ये जो डाइवर्जिंग इमेज थी हमने इसको क्यों नहीं बनाया 3 दफा? क्योंकि उसका केस ही एक है. जितने केसेस होंगे हम वही ड्रॉ करेंगे ना. यस मैम। Okay. So recap. Skeleton same है. Principal axis, lens के दरमियान से लाइन ड्रॉ की, फोकल पॉइंट्स ड्रॉ की, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट की, एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी, दूसरी पैरेलल और कन्वर्ज. इस केस में स्ट्रेट, पैरेलल और डाइवर्ज. और जब आप टू एफ वेब के दरमियान में रखेंगे तो इमेज एनलार्ज्ड और इन्वर्टेड होगी. वेब से बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड होगी. और बिल्कुल टू एफ पे रखेंगे तो इमेज सेम साइज की होगी और इन्वर्टेड होगी. और अगर आप एफ से भी पहले रख देते हैं तो इमेज वर्चुअल होगी क्योंकि दो डॉटेड लाइंस मीट कर रही हैं. एनलार्ज्ड और अपराइट होगी. यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की इमेज लाइक ऑब्जेक्ट प्लेस किया आपने तो एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी पैरेलल और डाइवर्ज और डॉटेड लाइन एक्सटेंड करेंगे बैक. और जब एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो भी वर्चुअल इमेज होती है. एंड बाय दिस इमेज arrow you can see it's diminished and upright. That's it for today.